Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Good morning dear students, welcome to science class. Today we are going to start with chapter number 2 and the name of this chapter is components of food. In this chapter we will be covering topics such as why do we eat food, why do we eat different varieties of food, components of food such as nutrients, dietary fibers and water. Different types of nutrients such as carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. Balanced diet and deficiency diseases. Hey, I am Priya and I have many questions to ask. Here is a girl whose name is Priya. यहाँ एक गर्ल है जिसका नाम क्या है, प्रिया है. And she has many questions to ask. और इसके पास आप सबसे पूछने के लिए बहुत से questions हैं. Now she is saying, my mother always asks me to eat my breakfast, lunch and dinner properly. So I daily eat my food and always finish my tiffin in the school. But tell me one thing, why do we eat food? What will happen if I don't eat food? Do our body needs it? उसकी मम्मी हर दिन उसे कहती हैं कि प्रिया अच्छे से अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर किया करो. तो वो हर दिन अच्छे से खाती है और डेली स्कूल में अपना टिफ़िन भी फिनिश करती है. बट शी वॉन्ट्स टू नो दैट वाई डू वी ईट फूड. हम हर दिन खाना क्यों खाते हैं. वॉट विल हैपन इफ़ आई डोंट ईट फूड. अगर वो खाना नहीं खाए तो क्या होगा. डू आवर बॉडी नीड्स फूड. क्या हमारी बॉडी को खाने की ज़रूरत है. सो लेट्स आंसर प्रियास क्वेश्चन. So Priya, just as petrol and diesel is fuel for our car, in the same way food is fuel for our body. Food provide us energy and are necessary for our survival. जिस तरह से कार, स्कूटर और बस चलाने के लिए पेट्रोल और डीजल की नीड होती है, उसी तरह से हमारी बॉडी को भी फूड की नीड होती है. फूड से हमें एनर्जी मिलती है और यह हमारे जीने के लिए बहुत ही ज़रूरी है. Priya is now wondering, sometimes I eat aloo paratha with curd, sometimes I eat dal chawal and sabzi roti. Mom always asks me to have milk, variety of fresh fruits and green vegetables, eggs, fish, etc. Why do we eat so much variety of food? Can't I eat food only which I like? अब प्रिया सोच रही है कि कभी मैं आलू पराठा खाती हूँ तो कभी दाल चावल और सब्जी रोटी खाती हूँ. उसकी मम्मी हमेशा उसे कहती हैं कि प्रिया मिल्क, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग्स और फिशेस भी खाया करो. नाउ शी इज़ आस्किंग दैट कि हम इतनी सारी वेराइटीज़ का खाना क्यों खाते हैं. क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ वो खाऊं जो मुझे पसंद है. So Priya, let's understand it this way. We know that food is made up of one or more ingredients and these ingredients contain nutrients, roughage or dietary fiber and water. Nutrients are further classified into carbohydrate, proteins, fat, vitamins and minerals. And our body needs these different nutrients, dietary fiber and water for its proper functioning. हमें पता है कि कोई भी फूड आइटम बहुत सारे इंग्रेडिएंट से मिलकर बनता है और इन इंग्रेडिएंट्स में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं. न्यूट्रिएंट्स के अलावा इसमें डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी होता है. ये सभी कंपोनेंट्स ऑफ फूड हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं. Single food item does not contain all these nutrients, so we eat a variety of food to get all the nutrients. एक तरह के खाने से हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स, डाइटरी फाइबर्स और वाटर नहीं मिलते, इसलिए हम अलग अलग तरह का खाना खाते हैं. सो आपने देखा कि हम वैरायटी ऑफ फूड क्यों खाते हैं. बिकॉज डिफरेंट फूड आइटम्स में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, डाइटरी फाइबर्स और वाटर प्रेजेंट होता है.
जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और जो हमें हेल्दी और एक्टिव रखने में हेल्प करते हैं। नाउ कम टू योर बुक। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। चैप्टर 1 में हमने क्या किया था? चैप्टर 1 में हमने उन फूड आइटम्स की लिस्ट बनाई थी जो हम डेली खाते हैं। We also identified food items eaten in different parts of India and marked these on its map. और हमने क्या किया था? हमने आइडेंटिफाई किया था कि इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में किस तरह के फूड आइटम्स खाए जाते हैं। जैसे साउथ इंडिया में इडली, डोसा, सांभर जैसी चीज़ें खाई जाती हैं। पंजाब में छोले भटूरे, पराठा, सरसों का साग, मक्का की रोटी खाई जाती है। इसी तरह से हमने देखा था कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग फूड आइटम्स खाए जाते हैं। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। मील का मतलब होता है एक टाइम का खाना। मीन्स एक टाइम का जो खाना होता है उसमें क्या क्या हो सकता है? उसमें चपाती हो सकती है, दाल हो सकती है, ब्रिंजल करी हो सकती है। अनदर मे बी राइस, सांभर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज फिंगर, भिंडी। दूसरा जो मील होगा उसमें क्या हो सकता है? उसमें राइस हो सकते हैं, राइस के साथ सांभर हो सकता है और भिंडी की सब्जी हो सकती है। भिंडी को क्या कहा जाता है? लेडी फिंगर। Yet another meal could be appam, fish curry and vegetables. और अगर थर्ड मील की बात करें तो उसमें appam, fish curry और कोई भी वेजिटेबल हो सकती है। सो एक हेल्दी मील में एक ग्रीन से बना आइटम होना चाहिए, जैसे चपाती, राइस, एक दाल होनी चाहिए और एक वेजिटेबल होनी चाहिए। नाउ लुक एट एक्टिविटी 1. Our meals usually have at least one item made of some kind of green. Other item could be a dal or a dish of meat and vegetables. It may also include items like curd, buttermilk and pickles. अभी जो हमने मील देखे, फर्स्ट मील, सेकंड मील और थर्ड मील, तीनों में हमने एक चीज़ देखी कि मील में जो एक आइटम होगा वो किस चीज़ का बना होगा? ग्रेन का, जैसे राइस, व्हीट या कॉर्न का। दूसरा जो आइटम होगा उसमें क्या हो सकता है? उसमें दाल हो सकती है या मीट की कोई डिश हो सकती है या कोई और वेजिटेबल हो सकती है। इसी के साथ मील में क्या हो सकता है? उसमें कर्ड हो सकती है, बटर मिल्क हो सकता है या पिकल मीन्स अचार हो सकता है। तो हमारे मील में डिफरेंट फूड आइटम्स क्यों होने चाहिए? क्योंकि इनमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है और ये हमें हेल्दी रखते हैं। Some examples of meals from different region are given in table 2.1. Now look at table 2.1. इसमें आपको क्या करना है? इसमें सबसे पहले आपको रीजन या स्टेट लिखना है। जैसे यहाँ क्या लिखा है? पंजाब। नेक्स्ट कॉलम में आपको लिखना है आइटम ऑफ ग्रेन। यहाँ आपको ग्रेन से बना कोई आइटम लिखना है। जैसे पंजाब में क्या खाया जाता है? पंजाब में मक्के की रोटी खाई जाती है, जो किससे बनी होती है? कॉर्न से। और कॉर्न क्या है? एक ग्रेन है। नेक्स्ट आपको लिखना है आइटम ऑफ दाल और मीट। यहाँ आपको दाल या मीट से बना आइटम लिखना है। जैसे पंजाब में ज़्यादातर राजमा खाई जाती है, जिसे किडनी बीन्स कहा जाता है। नेक्स्ट आपको वहाँ की फेमस वेजिटेबल लिखनी है। जैसे पंजाब की फेमस वेजिटेबल क्या है? सरसों का साग। नेक्स्ट अदर में क्या लिखना है? अदर में आप कोई भी फूड आइटम्स लिख सकते हैं जो उस स्टेट में खाया जाता है। जैसे पंजाब में क्या खाया जाता है? पंजाब में कर्ड और घी खाया जाता है। सो इसी तरह से आपको ये टेबल फिल करनी है। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दीज वेराइटी इन आवर मील्स। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग we may eat whatever is available on the way. It may not be possible for some of us to eat such a variety of items most of the time. कभी कभी क्या होता है कि हमारे मील में ये सारी वैरायटीज़ नहीं होती, क्योंकि अगर कभी हम ट्रैवलिंग करते हैं तो ट्रैवलिंग के टाइम पर जो भी हमें रास्ते में मिलता है वो हम खा लेते हैं। जैसे कभी हम कुरकुरे खा लेते हैं, कभी बिस्किट्स खा लेते हैं, कभी भेलपूरी खा लेते हैं और कभी आलू पूरी खा लेते हैं। सो ये हम सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स खाएं। बट हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम खाते हैं उसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, डाइटरी फाइबर्स और वाटर प्रेजेंट हो, जिससे हम हमेशा के लिए हेल्दी और एक्टिव रह सकें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल of EduFun Classes. Thank you for watching.